Remember the specific antidote. What is specific antidote for organophosphorus poisoning? That is nothing but the pralidoxime. Pralidoxime, or it is known as a 2-palm. It is a specific antidote for organophosphorus poisoning. Irreversible inhibitor are of two type. First one is the organophosphates and second one is the carbamates. Okay, so in case of carbamate poisoning, what happens? The carbamate used to bind the enzyme both side, anionic side as well as that stereotic side, but organophosphorus compound they used to only bind at stereotic side. Now this pralidoxime regenerate the enzyme at stereotic side, not at anionic side. That's why this pralidoxime is only useful in the treatment of organophosphorus poisoning, not carbamate poisoning. So in the carbamate poisoning you use atropine. Atropine is a antidote of choice for both organophosphate as well as carbamate poisoning. We have seen in this. So pyridine 2-aldoxamide, it is the IUPAC name of that pralidoxime. Pyridine 2-aldoxamide, it is the IUPAC name of that pralidoxime. Another brother of this palm is there, diacetyl monoxamine, DAM. जैसे पाम है पाम PAM, तो वैसे ही DAM है DAM, उसका बोलते हैं डाइएसिटाइल मोनोक्सामाइन. ठीक है, बोथ आर द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, तो आपको ये प्रेलिडॉक्सिम तो याद रहता है, प्रेलिडॉक्सिम तो याद रहता है. लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया है और ऑप्शन में आपको दिया है डाइएसिटाइल मोनोक्सामाइन, so diacetyl monoxamine is also the antidote. Okay, and it is a more potent than pralidoxime, remember. So we have seen in this these things in the morning. Parasympatholytics, we have seen the parasympathomimetics. Parasympathomimetics means they will produce action similar to your acetylcholine. Now parasympatholytics, lytics means blockers. So parasympatholytics means those drug which will prevent the or which will block the actions of acetylcholine. तो एसिटिलकोलिन का जितना भी एक्शंस है, जैसे सलाइवेशन हो गया या फिर इंक्रीज इन द सिक्रेशन हो गया, ठीक है, जैसे डिप्रेशन ऑफ हार्ट मायोकार्डियम पे. सो ऑब्वियसली जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स है, तो वो क्या करेंगे, एसिटिलकोलिन के एक्शंस ब्लॉक करेंगे, मतलब उसके अपोजिट एक्शन दिखाएंगे. तो देखो एड्रेनालिन क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है. एड्रेनालिन स्टिमुलेट करता है हार्ट को, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, कंडक्शन वेलोसिटी इंक्रीज करता है. ठीक है, सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं हार्ट का. ठीक है, तो एसिटिलकोलिन क्या करेगा, उसके अपोजिट एक्शन है उसका. तो एसिटिलकोलिन का क्या एक्शन है, इट विल डिप्रेस योर हार्ट, इट विल स्लो डाउन द कंडक्शन वेलोसिटी, इट विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. ओके, सो इट विल डिप्रेस द मायोकार्डियम. अभी देखो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सेम एक्शन करेंगे एसिटिलकोलिन के जैसे, लेकिन पैरासिम्पैथोलाइटिक अपोजिट एक्शन. अभी पैरासिम्पैथोलाइटिक क्या करेंगे, एसिटिलकोलिन डिप्रेस कर रहा था हार्ट को, ये स्टिमुलेट करें. सो ऐसा लाइक वाइज. सो यू कैन कोरिलेट दिस पैरासिम्पैथोलाइटिक विथ योर सिम्पैथोमाइमेटिक्स. तो कुछ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो है उनके जैसे ही इनके एक्शन रहेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट विल सी द क्लासिफिकेशन. नाउ फर्स्ट वन इज द नेचुरल अल्कोलाइड्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. फर्स्ट वन इज द नेचुरल अल्कोलाइड्स. In that you have atropine and scopolamine. Atropine and scopolamine both are the alkaloid from Atropa belladonna and this Hyoscyamus niger. So both are nothing but the tropine alkaloids and they are the anticholinergic or muscarinic blocking agent. Then another class is semi-synthetic derivative. So these are the semi-synthetic derivative of above. जो natural alkaloid है atropine, scopolamine, उनके ही semi-synthetic derivative है, जैसे होमोट्रोपिन, एट्रोपिन मोनोनाइट्रेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड ट्रोपोट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, होमोट्रोपिन, एट्रोपिन. So out of that ipratropium bromide is used in the asthma. Total synthetic derivative of atropine and scopolamine. So in that you have different subclasses. Those used as a mydriatic. So mydriatic means those which will increase the pupil size. मैंने बोला था आपको, जैसे एड्रेनालिन है आपका, एड्रेनालिन का एक्शन क्या है आइज पे, तो एड्रेनालिन विल कॉज माइड्रियासिस, नॉर एड्रेनालिन विल कॉज माइड्रियासिस. उसके अपोजिट क्या करेगा, एसिटिलकोलिन मायोसिस करेगा, मायोसिस कम करेगा साइज. एंटीकोलिनर्जिक क्या है कि वो सिम्पैथोमाइमेटिक जैसे ही एक्शन दिखाएंगे. सो एंटीकोलिनर्जिक आल्सो कॉजेस माइड्रियासिस, रिमेंबर. ओके, सो सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ दिस synthetic anticholinergic. So in that you have first mydriatic. So cyclopentolate and tropicamide. Cyclopentolate and tropicamide.
Then second is anti-secretory agent. So okay, anti-secretory, antispasmodic agent. So propanthalin, then here dicyclomine, etc., etc. So there are further classes in the anti-secretory agent. You have further classes, like first one is a quaternary ammonium compound. So in that you have propanthalin, oxophonium, oxyphonium, then glycopyrrolate, then pipenzolate, methyl bromide. These are the compound, quaternary ammonium compound. So in that you have these propanthalin, oxyphenonium, glycopyrrolate, then pipenzolate, methyl bromide. So natural alkaloids, anticholinergic, semi-synthetic anticholinergic, and synthetic anticholinergic. In the synthetic, you have two classes: mydriatic, those used for to increase the pupil size, cyclopentolate and tropicamide. Then anti-secretory, antispasmodic. So those drugs which are used to prevent the excessive gastric acid secretion and excessive contraction of your GIT muscle. That is antispasmodic. So in that also we have two classes: quaternary ammonium compound, that is a propanthalin, oxyphonium, glycopyrrolate, then pipenzolate, methyl bromide. Then tertiary amines, so dicyclomine, then valethamate and pyranzapine. Remember these names. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, डाइसाइक्लोमाइन, वेलेथामेट एंड पायरानज़ेपिन. सो टर्शियरी अमाइन कौन है? डाइसाइक्लोमाइन. क्वाटरनरी कंपाउंड कौन है? क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स. ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स कौन है? प्रोपेंथैलिन इज अ क्वाटरनरी अमोनियम, ऑक्सीफेनोनियम इज अ क्वाटरनरी, ग्लाइकोपायरोलेट इज अ क्वाटरनरी, पाइपेनजोलेट मिथाइल ब्रोमाइड इज अ क्वाटरनरी. टर्शियरी डाइसाइक्लोमाइन है, ठीक है, पायरानज़ेपिन है. बोथ quaternary and tertiary, they are used as anti-secretory. Now third category under the synthetic, vasoselective. So vasoselective means they are selectively for the blood vessels. So oxybutynin, then flavoxate and tolterodine. Okay, so these are the three: oxybutynin, flavoxate and tolterodine. Those anticholinergic used as a anti-Parkinson drug. So trihexyphenidyl, then procyclidine and bipyridine. These three, trihexyphenidyl, procyclidine and bipyridine, these three are used as anti-Parkinson. So देखो नेचुरल अल्कोहॉइड में एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, सेमीसिंथेटिक अल्कोहॉइड्स में सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहॉइड्स में होमोट्रोपिन, एट्रोपिन मोनोनाइट्रेट, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड. देन सिंथेटिक में आता है आपका 4 क्लासेस: माइड्रियाटिक, एंटी-सिक्रेटरी एजेंट, माइड्रियाटिक एंटी-सिक्रेटरी एजेंट, देन वैसोसेलेक्टिव एंड देन एंटी-पार्किंसन. तो माइड्रियाटिक में आता है साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड. एंटी-सिक्रेटरी एंटी-स्पाज्मोडिक में आता है अगेन 2 क्लास, अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू सब 2 क्लासेस. सो क्वाटरनरी कंपाउंड प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफेनोनियम, ग्लाइकोपायरोलेट, पाइपेनजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड. टर्शियरी अमाइंस में आता है डाइसाइक्लोमाइन, वेलाथामेट एंड पायरेनज़ेपिन. देन थर्ड क्लास में आता है इसमें वैसोएक्टिव, ऑक्सीब्यूटिनिन, फ्लेवोक्सेट एंड टोल्टेरिडिन. ओके, देन एंटी पार्किंसन में आता है ट्राइहेक्सिलफेनिडिल, देन प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन. These are the 3. Classification is very important, you have to remember it. Now next one is nothing but again you can see the classification anticholinergic drugs. So they are mostly anticholinergic, मतलब there are 2 possibilities: muscarinic receptor blocking and nicotinic receptor blocking. So nicotinic receptor blocking, they are used as a skeletal muscle relaxant. Muscarinic blocking agent, anti-muscarinic क्या है? Atropine and scopolamine and its derivative, whatever we have seen in the previous slide. Now anti-nicotinic action में आता है आपका ये all these anti-nicotinic action, they are used as a skeletal muscle relaxant. तो इसमें skeletal muscle relaxant का भी आपका क्लासिफिकेशन कवर हो जाएगा. यही क्लासिफिकेशन बाद में अपन skeletal muscle relaxant भी ले लेंगे. Okay, so anti-nicotinic action responsible for the skeletal muscle relaxation, because nicotinic action is responsible for the skeletal muscle contraction. So anti-nicotinic action, relaxation. Okay, now anti-nicotinic neuronal. Okay, जो 2 टाइप का निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, we have seen that there are 2 type of nicotinic receptor, NM and NN. So NM is known as a neuromuscular junction. Okay? So anti-NM receptor, they are known as a neuromuscular blockers. Those which will block neuromuscular junction, they are known as a neuromuscular blockers. And those drugs which will block NN receptor, that is a
the that receptor is present in the ganglia and all that, okay, and neuronal ganglia and all that. So they are known as a ganglion blocker, ganglionic blocking agent, or ganglion blockers, ganglion blockers or ganglionic. So we have seen the muscarinic, anti-muscarinic classification or anti-nicotinic classification, because there are two type of receptor, nicotinic receptor, NM and NN. So those drug which blocks the NM receptor, they are known as a neuromuscular blocker, and those drug which block the NN receptor, they are known as a ganglionic blocker. Now ganglionic blocker will not have much application. This neuromuscular blocker will have application in case of muscle spasticity. They are known as a skeletal muscle relaxant. Now in that also neuromuscular blockers may be classified into again two type. That is a competitive, non-competitive. So competitive is also known as a competitive non-depolarizing blockers. Okay, competitive non-depolarizing blockers or competitive non-depolarizing type of skeletal muscle relaxant. Non-competitive depolarizing blockers, non-competitive depolarizing skeletal muscle relaxant. So competitive non-depolarizing skeletal muscle relaxant again further divided into three: long acting, intermediate acting and short acting. So long acting is your D-tuberculin and pancuronium. Intermediate acting is a vecuronium and atracurium. Short acting is a maybe curium and repacuronium. Okay. Then non-depolarizing neuromuscular blockers of non-depolarizing or non-competitive depolarizing neuromuscular blocker or skeletal muscle relaxant. They are nothing but the succinylcholine and demamethonium. Succinylcholine and decamethonium. Okay. So it is a classification of your skeletal muscle relaxant. Skeletal muscle relaxant जो है ये सब skeletal muscle relaxant. And anti-muscarinic we have seen in the previous slide. The previous slide में देखा था वो anti-muscarinic था. So all these are used as a skeletal muscle relaxant. After completing the anticholinergic, we will see the skeletal muscle relaxant. Now again see the classification of anticholinergic drugs. Okay, so anticholinergic may be either anti-muscarinic or anti-nicotinic. Muscarinic antagonist. So particularly here muscarinic antagonist they have mentioned. Okay, so in that you have natural alkaloids like atropine, hyoscine or scopolamine. In semisynthetic derivative, atropine methonitrate, homotropine, hyoscine hydrobromide, then ipratropium bromide and tiotropium bromide. These are the synthetic one. Sorry, semisynthetic. Natural, semisynthetic and synthetic. Synthetic again divided into different classes. Okay, synthetic again divided into 4 classes. So first one is your mydriatic. So what are the mydriatic? Cyclopentolate and tropicamide. Then okay. Then anti-secretory कौन है यहाँ पे देखो, anti-secretory again further divided into 2 class. So quaternary and tertiary. Quaternary कौन है? Propenthalin, oxyphenonium, then clinidium, then pipenzolate, methyl bromide, isopropamide, glycopyrrolate. These are the quaternary. Tertiary कौन है? Dicyclomine, valethamate and pyrazine. These are the tertiary one. टाइम पे आते जाओ यार, टाइम पे नहीं आएगा तो कैसा होगा? आप प्लीज़ टाइम पे आते जाओ. क्या आता है बाद में फिर मुझे डिस्टर्ब होता है. ये टाइम पे आते जाओ. नाउ दिस वाज द एंटी सेक्रेटरी. ओके, एंटी सेक्रेटरी अगेन डिवाइडेड इनटू क्वाटरनरी एंड टर्शरी ट्वाइस. देन थर्ड क्लास विल बी vasoselective, oxybutynin, flavoxate and tolterodine. Then anti-Parkinson drug, trihexyphenidyl, then procyclidine and bipyridine. So these are the anti-Parkinson. So they have already asked the question on this. So anticholinergic drug used as an anti-Parkinson drug. Following is the anticholinergic drug with anti-Parkinson drug. उसमें आपको ये ऑप्शन देंगे. So remember, trihexyphenidyl is also known as benzhexol. Trihexyphenidyl is also known as benzhexol. Then procyclidine, bipyridine. These are the anti-Parkinson drug. Then mydriatic कौन है? vasoselective कौन है? oxybutynin, flavoxate, tolterodine. एंटी सेक्रेटरी में 2 आता है, क्वाटरनरी आता है, टर्शरी आता है. ये याद रखो. डाइसाइक्लोमिन टर्शरी है, देन वेलेथामेट टर्शरी है, पायरेनजेपिन टर्शरी है. ये प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफिनोनियम, देन क्लिंडिनियम, देन पाइपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, isopropamide and glycopyrrolate. So these are the quaternary one. Okay, so you have to remember the classification. इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. Now we'll see the next one. Next one is nothing but the muscarinic blocking agent, their mechanism of action and pharmacological action. We'll see. So muscarinic receptor blocking agent
These drugs include atropine and related compound as we have seen in the classification. They are obtained from Atropa belladonna, Hyoscyamus niger, Atropa belladonna, Datura, etc., etc. So antimuscarinic, mostly antimuscarinic, they are obtained from this belladonna, Datura, Hyoscyamus, scopolamine. Okay, belladonna, Hyoscyamus, Datura. Okay, atropine and scopolamine. Atropine is a prototype of this class. So all muscarinic blocking agent will have a similar action like atropine. The selectivity will be plus minus. Two important alkaloids from Atropa belladonna, that is a atropine and scopolamine. Atropine is known as a DL-hyoscyamin. Atropine is a racemic mixture. Remember, atropine is a racemic mixture of DL-hyoscyamin. Okay, scopolamine is nothing but the hyoscine. Atropine and its synthetic analog are most commonly used as a anticholinergic drug or parasympatholytic drugs. Now, mechanism of action. So atropine and related drug competitively block the muscarinic acetylcholine receptor. ये क्या करेंगे, muscarinic receptor है उसको block करेंगे. So they are known as anti-muscarinic. Anticholinergic drug are commonly known as anti-muscarinic. So atropine and related drug, they will block the muscarinic receptor competitively. The blockage is reversed by excess of amount of acetylcholine. अभी एट्रोपिन अगर देंगे, एट्रोपिन से मस्कर्निक रिसेप्टर ब्लॉक होगा, ठीक है, लेकिन उसका रिवर्सल कर सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं बाय जस्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एसिटिलकोलिन. सो दीज ड्रग डू नॉट इंटरफेयर विद द सिंथेसिस, रिलीज, स्टोरेज ऑफ एसिटिलकोलिन, ओके, फ्रॉम द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग. दे ओनली block the muscarinic receptor and prevent the muscarinic action of acetylcholine. Salivary and bronchial secretion are extremely sensitive to smooth muscles of GIT, eyes and heart are less affected. So जितने भी secretion होंगे वो ज़्यादा sensitive होता है. So anti-muscarinic action of atropine. Okay, so atropine is more sensitive for the exocrine secretion, salivary glands, bronchial secretion, GIT secretion, etc., etc. So that will be inhibited by atropine because it is anti-muscarinic. acetylcholine क्या करेगा, उसका secretion बढ़ा देगा, salivary secretion बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है, जो भी एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक सिक्रेशन होगा, इंटेस्टिनल जो भी गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस, गॉल ब्लैडर जूस, सो ऑल एक्सोक्राइन सिक्रेशंस विल बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड बाय एसिटिलकोलिन. नाउ atropine is anti-muscarinic, so atropine will decrease all these. Okay, so that's why atropine has one of the most important adverse effect, dryness of mouth, because of anti-muscarinic effect. Now the smooth muscle of GIT, eyes and heart, it will be less affected by atropine. Okay, now atropine is not able to block the actions of acetylcholine after vagal stimulation. So normally जो है acetylcholine जो है उसको ब्लॉक करता है, लेकिन अगर आपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट किया और उसके कारण ज़्यादा acetylcholine रिलीज हो गए, so that action will not be blocked. Now pharmacological actions of atropine and atropine. Okay, secretion जो exocrine secretion है, all the glands, okay, secretions there will be reduced, all secretions will be reduced. So reduction in all exocrine secretion except milk. So production of milk will not be affected by atropine. Then therefore decrease in the salivary secretion, dryness of mouth, difficulty in the swallowing due to dryness of mouth, difficulty in swallowing, आपको निगलने में तकलीफ हो जाएगी. Gastric secretion also decrease. Volume and total acidity is reduced due to atropine. Reduction in the secretion of mouth, nose, pharynx, bronchi. Inhibition of sweat gland. Secretion, it has a very less effect on the pancreatic and intestinal secretion, but all the secretions will be inhibited. Now CNS के ऊपर जो है atropine is a CNS stimulant. Remember, atropine is a CNS stimulant, whereas scopolamine is a CNS depressant. ठीक है, ये याद रखो, atropine क्या है, CNS stimulant है, और scopolamine क्या है, CNS depressant है. Okay, and scopolamine is also used as a anti-emetic. ठीक है, atropine क्या है, CNS stimulant है, scopolamine क्या है, CNS depressant है. तो atropine vomiting एंटी-emetic नहीं है atropine, बट scopolamine एंटी-emetic है. इट डिप्रेसेस द केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, CTZ. scopolamine CTZ को डिप्रेस करके एंटी-emetic एक्शन भी दिखाता है, इन एडिशन टू muscarinic blocking. Now we'll see the next. Now what is the action of atropine and related compound on smooth muscle of GIT? So reduction in the tone and motility. तो आपका जो acetylcholine की वजह से जो GIT का पेरिस्टाल्सिस बढ़ गया था, that will be reduced. So reduction in the tone and motility, excess antispasmodic,
excess antispasmodic, it has antispasmodic action. So atropine will exert antispasmodic action in the GI. Then again biliary tract, जो बाइल का ट्रैक्ट होता है आपका, बाइल गॉल ब्लैडर का ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर से आता है जो ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर से जो सिक्रेशन आता है आपका, ऑन दैट बाइलरी ट्रैक्ट आल्सो इट विल एक्ट एज एंटीस्पास्मोडिक. यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर क्या है इसका एक्शन देखो, रिड्यूसेस द it reduces the ureterial peristalsis. यूरेथ्रल पेरिस्टालसिस क्या है, कम करेगा, एंड कॉजेस यूरिनरी रिटेंशन. ओके, सो देखो मैंने बोला था आपको पहले कि जैसे आपका ये जो है एड्रेनालिन जो है, तो एड्रेनालिन के जैसे ही उसके एक्शंस रहेंगे. एड्रेनालिन का एक्शन क्या होता है कि यूरिनरी रिटेंशन, तो वैसे ही एट्रोपिन का एक्शन है यूरिनरी रिटेंशन. सो जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है वो एड्रेनालिन के जैसे एक्शन दिखाएंगे, जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है वो एसिटिलकोलिन के जैसे एक्शन दिखाएंगे, जो सिम्पैथोलाइटिक है जो नॉरएड्रेनालिन का एक्शन है वो ब्लॉक करेंगे, जो पैरासिम्पैथोलाइटिक है वो एसिटिलकोलिन का एक्शन ब्लॉक करेंगे. पैरासिम्पैथोलाइटिक जो होते हैं दे लुक लाइक एड्रेनर्जिक ड्रग, जैसे एड्रेनालिन के जैसे ही करेंगे. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर मस्कैनिक ब्लॉकर्स और एंटीकोलिनर्जिक ऑन आईज? So they causes mydriasis and cycloplegia. They causes mydriasis and cycloplegia. So your acetylcholine causes meiosis and spasm of accommodation. So spasm of accommodation and meiosis is caused by your acetylcholine. So mydriasis and cycloplegia that is caused by atropine. Okay. Spasm of accommodation मतलब क्या? Spasm of accommodation मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि आप थिएटर में बैठे हो, मूवी चालू है, तो थिएटर में देखो क्या होता है कि लाइट कम होता है, लाइट एकदम बहुत ही नॉर्मल होता है, ब्राइट लाइट नहीं होता, एकदम लाइट कम होता है, और आपको कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ स्क्रीन दिखती है. लेकिन जब पूरा फिल्म एंड होता है और आप जब उठते हो तो आपको 2 मिनट के लिए समझ में नहीं आता कि आपके सामने अंधेरा छा जाता है 2 मिनट, तो अचानक. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ योर आई फ्रॉम डीम लाइट टू द ब्राइट लाइट. अगर आप डीम लाइट में हो और सडन ब्राइट लाइट में चले गए तो आपको एक कुछ सेकंड के लिए पूरा अंधेरा छा जाता है. सो उसके बाद में आपका आईज जो है वो अकोमोडेट कर लेता है. सो माइड्रियासिस, एसिटिलकोलिन कॉजेस मियोसिस, पिन पॉइंट पिपिल. ओके, मियोसिस मतलब पिपिल साइज कम कर देगा. एंड स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन, मतलब स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन मतलब जब वो बंदा डीम लाइट से ब्राइट लाइट में जाएगा तो उसको ज़्यादा टाइम लेता है एडजस्ट करने के लिए. नॉर्मली क्या है, नॉर्मल बंदा है तो कुछ सेकंड में एडजस्ट कर लेगा वो डीम लाइट टू ब्राइट लाइट. बट अगर एसिटिलकोलिन देके रखा है उसको तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको. दैट इज नोन एज स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन. सो स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन मतलब स्पाजम ऑफ सिलियरी मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट्स व्हाई एसिटिलकोलिन कॉजेस मायोसिस एंड स्पाजम ऑफ एकोमोडेशन. सो अपोजिट टू दैट एट्रोपिन कॉजेस माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया. So because of blocking of cholinergic nerve to the smooth muscle of sphincter of iris, it blocks the this block leads to paralysis of ciliary smooth muscle, and this produces tightening of suspensory ligament resulting into flattening of lens. Okay, and which causes increase in the focal length. ये focal length बढ़ाएगा, so the vision is fixed for far sight. तो आपको एसिटिलकोलिन, अगर आपका एसिटिलकोलिन का है, एसिटिलकोलिन के अंडर में है, तो आपका विजन जो नियर डिस्टेंस है उसके लिए रहता है. एट्रोपिन क्या करता है, माइड्रियासिस करता है एंड आपका विजन फिक्स कर देता है फॉर ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड ऑन फार डिस्टेंस. ओके, सो योर विजन इज फिक्स फॉर फार डिस्टेंस. सो बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ कोलिनर्जिक नर्व and because of blocking of that nerve, it causes paralysis of ciliary smooth muscle, which produces tightening of suspensory ligament, result into flattening of lens. Lens आपको flat होगा eyes का, and which the consequence of that which increases the focal length. So the vision is fixed for far vision. So one can see object clearly which are at a far distance, but cannot see the object from near distance because of the paralysis of pupil sphincter. This phenomenon is known as a paralysis of accommodation or cycloplegia. Atropine causes paralysis of accommodation and cycloplegia. ये important है, याद रखो. Paralysis of accommodation, ये accommodate नहीं कर पाता जल्दी, and cycloplegia. Now what is the action of atropine on cardiovascular system? So it will cause bradycardia due to stimulation of medullary vagal nuclei. Later on it produces tachycardia. Tachycardia मतलब increase in heart rate, brady मतलब कम, decrease in the heart rate.
Initially it causes bradycardia due to vagal stimulation, and later on it produces bradycardia. It produces tachycardia due to muscarinic blocking action on SA node. Atropine completely counters the peripheral vasodilation and hypotension produced by cholinergic drug. So whatever hypotension are produced by cholinomimetic drug, cholinomimetic alkaloids, okay, or anticholinesterase, so that is blocked by this atropine. What is action on CNS? Atropine is medullary stimulant. It causes stimulation of medullary vagal nuclei and higher center, increases the rate and depth of respiration. So it is a CNS stimulant. Atropine in moderate doses can control the tremors and rigidity. In Parkinson patient, it stimulates the vagal and respiratory center, okay, vagal, respiratory center and vasomotor center, but it depresses the vestibular excitation and has a anti-motion sickness activity. So in contrast to atropine, your scopolamine depresses the reticular activating system, usually produces the euphoria, drowsiness, amnesia, dreamless sleep and reduction of REM. तो ये जो स्कोपेलामाइन है, it depresses the reticular activating system and produces euphoria, drowsiness, amnesia, dreamlessness. Okay, and that's why because of this property scopolamine is used in the lie detector test. जो lie detector test होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक आता आपका क्या बोलते हैं उसको, एक सस्पेशियस टेररिस्ट है आपके, और आपको उससे इंफॉर्मेशन निकालना है. वो कैसा रहता है, टेररिस्ट का ब्रेन वॉश होके रहता है, तो उसका पूरा ब्रेन वॉश किया होता है. तो ब्रेन वॉश करने के वजह कारण क्या करते हैं कि वो सच कुछ भी नहीं बताते. दे विल नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू योर ऑफिसर्स, ओके, बिकॉज दे आर ब्रेन वॉश. वो ब्रेन वॉश होते हैं, तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन, उनकी कंट्री के इंफॉर्मेशन और क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे. आप कितना भी टॉर्चर कर लो उनको मारो, पीटो, चमड़ी उधर दो, आँख फोड़ दो, वो कुछ भी नहीं बताएंगे आपको, ओके, बिकॉज दे आर ब्रेन वॉश. दैट्स वाई. सो कंडीशन में उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इस कंडीशन में उनसे सच क्या है वो जानने के लिए, और वो किस इरादे से आए वो जानने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं. लाई डिटेक्टर टेस्ट, तो उसमें क्या करते हैं, उनको स्कोपेलामाइन का इंजेक्शन देते हैं. सो स्कोपेलामाइन विल डिप्रेस द रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम एंड विल प्रोड्यूस यूफोरिया, ड्राउजीनेस, अमनेशिया, ड्रीमलेस. ओके, सो ये सब केमिकल लोचा हो जाता है उसके माइंड में, और फिर वो उसको न चाहते हुए भी वो पूरा सच बोल देता है. सो दैट्स वाई दिस स्कोपेलामाइन इज यूज्ड इन द लाई डिटेक्टर टेस्ट. यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लिख लो. इट इज़ यूज्ड इन द लाई डिटेक्टर टेस्ट. सो atropine causes increase in the body temperature. It causes hyperthermia. Increase in the body temperature means hyperthermia by inhibition of sweat gland activity. जैसे आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा तो आपका स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या करता है फिर, ठीक है, वो क्या करता है फिर, वो स्वेट प्रोड्यूस करता है. वो स्वेट स्किन के ऊपर आता है, और वो टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ, वो टेम्परेचर के कारण वो स्वेट इवेपोरेट होता है. सो दैट एनर्जी, टेम्परेचर एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर इवेपोरेटिंग द स्वेट. ओके, नाउ सपोज दैट आपको, ठीक है, गर्मी है, आपको बहुत गर्मी, तो आपके स्वेट ग्लैंड क्या करेगा, स्वेट प्रोड्यूस करेगा, और वो इवेपोरेट करने के लिए जो आपका इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर है वो उसको आएगा, और बाद में आपका कूलिंग हो जाएगा. ठीक है, बट अगर आपका बॉडी के टेम्परेचर ये है क्या, कम है, तो आपका जो स्वेट ग्लैंड है वो उसका एक्टिविटी और ज़्यादा कम करेगा, वो स्वेट नहीं प्रोड्यूस करेगा. सो दैट्स वाई. सो atropine rises the body temperature, causes the hyperthermia. Remember, it has also has a mild anesthetic action. तो atropine को माइल्ड एनेस्थेटिक एक्शन है ऑन करने. तो यहाँ पे इतना याद रखो कि आइस के ऊपर atropine विल कॉजेस माइट्रियासिस एंड साइक्लोपेजिया, पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन और साइक्लोपेजिया. ओके, देन ऑन द हार्ट इट कॉजेस टैक्यकार्डिया. इन द CNS it depresses the CNS. Okay, it has anti-motion sickness activity also. Then remember, scopolamine will depress the reticular activating system, produces euphoria, drowsiness, amnesia, and it is used in the lie detector test. Scopolamine is used for the lie detection test. Okay, ये याद रखो. And then scopolamine is also drug of abuse. याद रखो, drug of abuse है. Now we'll see the next one. Now absorption, distribution, metabolism, elimination of your atropine and related compounds. So they are well absorbed from GIT. They are metabolized in the liver. Scopolamine is mostly metabolized as compared to atropine. Presence of atropine esterase enzyme in the some rabbits can detoxify atropine rapidly. Atropine can cross the placental barrier.
ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन. नाउ एडवर्स रिएक्शंस ऑफ दिस कंपाउंड बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन. सो फर्स्ट वन इज ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में तकलीफ होगा आपको, टैकीकार्डिया, फीवर. ठीक है, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, फीवर, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, रिटेंशन ऑफ यूरिन. इट कैन प्रेसिपिटेट ग्लाउकोमा इन द एल्डरली पेशेंट. It can cause allergic reaction locally, such as dermatitis, conjunctivitis, and swelling of eyelids. Okay, so most of these adverse effect of atropine is due to extension of pharmacological action. That is a dryness of mouth, difficulty in swallowing, tachycardia, fever, constipation, blurring of vision, retention of urine, and it can precipitate glaucoma in the elderly patient. तो देखो एट्रोपिन का ओवरडोज हो गया तो उसका एक सिम्टम आता है ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, यूरिन रिटेंशन, likewise retention of urine, okay? Blurring of vision, etc. Now that's why acute atropine poisoning. अभी क्या एट्रोपिन का पॉइजनिंग हुआ है तो क्या करने का. रिमेंबर स्कोपेलामाइन इज मोर टॉक्सिक देन एट्रोपिन. स्कोपेलामाइन इज मोर टॉक्सिक देन एट्रोपिन एंड टॉक्सिटी कॉज्ड ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ धतूरा सीड्स. ठीक है ना, तो धतूरा का सीड्स अगर आपने खा लिया तो फिर आपको एट्रोपिन स्कोपेलामाइन का पॉइजनिंग हो जाएगा. व्हाट इज द सिम्टम्स. इफेक्ट ड्यू टू मस्कर्निक ब्लॉकेज. मस्कर्निक ब्लॉकिंग की वजह से क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, इंटेंस थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, टैकीकार्डिया, पल्पिटेशन, फ्लशिंग, हाइपरपायरेक्सिया ड्यू टू इनिबिशन ऑफ स्वेटिंग, डायलेशन ऑफ पिपिल, माइड्रेसिस जो होता है, डायलेशन ऑफ पिपिल, ब्लरिंग ऑफ विजन, फोटोफोबिया, आपको लाइट का हेट हो जाएगा, फोटोफोबिया, यूरिनरी अर्जेंसी, डिफिकल्टी इन द मिक्चुरेशन एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन. These will be the effect due to muscular blockage. Now central effect, excitement, restlessness, motor incoordination, slurring of speech, disturbance of the memory, confusion, hallucination, occasionally mania, delirium, nausea, vomiting, hypertension. Severe poisoning result in the depression of motor center, respiratory paralysis, and it is more frequently with the scopolamine because scopolamine is more toxic than atropine. Now drug category like tricyclic antidepressant, phenothiazine, antipsychotics and antihistaminic also possess or also have anti-muscarinic action और muscarinic blocking action. So ये जो ड्रग्स होते हैं एंटी डिप्रेसेंट, फिनोथाइजिन्स या फिर आपके एंटीसाइकोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक एक्शन, ठीक है, अपन ने देखा है वहाँ पे. तो वो टाइप के ड्रग को भी कभी कभी एंटी मस्कर्निक इफेक्ट होता है एंड पॉइजनिंग ऑफ देम विल आल्सो लुक लाइक एट्रोपिन पॉइजनिंग एंड दे कैन increase the atropine poisoning or they can aggravate the symptoms of atropine poisoning. Now what is the treatment for atropine poisoning? Treatment is a universal antidote to prevent the unabsorbed alkaloid from the stomach, to prevent the absorption of alkaloid from the stomach. Okay, so what is the composition of universal antidote? यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि 4 part of activated charcoal, one part of tannic acid and 2 part of your sodium carbonate, likewise that sodium carbonate, tannic acid and activated charcoal. That is the composition of a universal antidote. यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, वो लिख के लियो. ओके, नाउ अगेन स्पेसिफिक एंटीडोट क्या है एट्रोपिन का? पाइसोस्टिग्माइन. स्पेसिफिक एंटीडोट क्या है? पाइसोस्टिग्माइन. सो दिस पाइसोस्टिग्माइन इज अ स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग. रिमेंबर, एक में को मतलब देखो पाइसोस्टिग्माइन का ओवरडोज हो गया आपको तो एट्रोपिन दे दो, एट्रोपिन का ओवरडोज हो गया तो पाइसोस्टिग्माइन दे दो, ऐसा. सो दे आर द एंटीडोट फॉर ईच अदर. नेक्स्ट इज अ सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एट्रोपिन. सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन से है? ओके, दे मे बी आइदर क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड विच आर लेस एब्सॉर्ब orally and do not cause blood-brain barrier because quaternary compound they are water soluble. Okay, non-selective muscarinic and nicotinic blockers, they are a non-selective muscarinic nicotinic blocker. So जो भी synthetic and semi-synthetic substitute है उसमें 2 टाइप का होता है, quaternary compounds and tertiary amine. So जो quaternary होता है वो water soluble होता है, they cannot cross blood-brain barrier and they are a non-selective muscarinic nicotinic blocker. दोनों को ब्लॉक कर दे. Now जो tertiary amines होते हैं, tertiary amines they can absorb orally and can cross blood-brain barrier and selective to the nicotinic receptor. जो टर्शरी का अमोनियम कंपाउंड है, जो क्वाटरनरी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते एंड नॉन सिलेक्टिव होते हैं. जो टर्शरी अमाइंस है दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर
Okay, they are absorbed well orally and selective to nicotinic receptor. Okay, they are classified into, we have already seen the mydriatic and cyclophasic, like atropine is there, homotropin, then ecatropine, then cyclopentolate, then tropicamide. These are the mydriatic and cyclophasic. Now spasmolytic, spasmolytic and anti-secretory. So atropine, then metascopolamine and methamphetamine and propanthelin. Then those used in the Parkinson disease, trihexyphenidyl, procyclidine and bipyridine. We have seen this. Then those used in the bronchitis and bronchial asthma, ipratropium bromide. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Anticholinergic drug used in the bronchitis and asthma, ipratropium bromide. Then atropine methonitrate. So it is again a mydriatic and it is drug used to treat the congenital hypertrophic pyloric stenosis. अभी ये थोड़ा सा टर्म्स है, आपको एक्सप्लेन करता हूँ. कंजेनाइटल मतलब क्या है? जन्म से ही. हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस मतलब जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है आपका, वो ओपन नहीं होता, वो बंद होता है. स्टेनोसिस मतलब बंद होना. ओके, सो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है आपका स्टमक का, ठीक है. नॉर्मली क्या है, आप खाना खाते हो, ईसोफेगस से आपके स्टमक में जाता है. तो स्टमक में जब जाता है तो ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस का लोअर एंड, तो वहाँ पे होता है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर. वो स्फिंक्टर से ओपन होना चाहिए, तभी आपका जो खाया हुआ खाना है वो पेट में जाएगा, अदरवाइज़ वो वहीं पे अटक जाएगा. ठीक है. सो कंजेनिटल मतलब जन्म से ही, अपन बोलते हैं ना, वो जन्म से ही अंधा है, जन्म से ही उसका प्रॉब्लम है. सो कंजेनिटल मतलब फ्रॉम बर्थ. ओके. हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस तो मतलब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है उसका स्टेनोसिस मतलब क्लोज होता है, वो ओपन नहीं होता. सो इन दैट केस atropine methonitrate is used. Okay. Then methascopolamine, it is devoid of central effect of scopolamine and it is used in the treatment of renal colic. renal colic मतलब क्या है? renal spasm, renal spasm. तो आपका यूरिनरी ये है, यूरेटर जो है उसका अगर स्पाजम हो गया, यूरिनरी स्पाजम, ओके, तो उसमें ये यूज़ करेंगे मेथास्कोपोलामाइन. ओके. देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन एसोसिएटेड विद सिस्टाइसिस. ये सिस्टाइसिस मैक्सिमम इसमें होता है, किसमें? लेडीज़ में. ओके. सो सिस्टाइसिस मीन्स इन इन्फ्लेमेशन ऑफ सिस्ट. ओके. बिकॉज ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन इज देयर. आपको अगर यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो आपको बार बार आपको यूरिन के लिए जाने की फीलिंग आती है. हालांकि आपके यूरिन होता ही नहीं है आपके ब्लैडर में, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इन्फेक्शन आपको फीलिंग आती है बार बार. सो दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन associated with the cystitis. Okay. Now next one is methamphetamine. Methamphetamine, it has a high ratio of ganglionic blocking to the muscarinic blocking activity. मतलब ये मैक्सिमम ganglionic blocking है, muscarinic blocking से ज़्यादा ganglionic blocker है. And has greater duration of action than atropine. Side effects are impotence. Impotence नहीं है यहाँ पे, impotence है, IMPOTENC. Impotence, postural hypotension, then urinary retention, neuromuscular block. This is the adverse effect of methamphetamine. Now we will see the next point. Now propanthelin. Okay, next one is propanthelin. It is related with the methamphetamine. Similar structure होता है उसमें थोड़ा बहुत. It will possess more potent ganglionic blocking and muscarinic blocking action. Now it is used as a it is used as a muscle relaxant. It is used as a muscle relaxant in the irritable bowel syndrome. ठीक है, irritable bowel syndrome, and also used for the relieving the pain of diverticulitis in the treatment of diarrhea. Also used in the treatment of diverticulitis and also used in the treatment of diarrhea. Popular anticholinergic drug for peptic ulcer and gastritis. It is an anti-secretory agent also. So it is a popular drug for, it is a popular anticholinergic for peptic ulcer and gastritis. अगर आपको गैस्ट्रिक GIT का इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको हाइपर एसिडिटी होती है और अल्सर होता है. सो दैट अल्सर इज नोन एज पेप्टिक अल्सर. So in the treatment of peptic ulcer, this propanthelin is used. Okay. Now oxyphenonium. Okay. Our next drug is oxyphenonium. So it is a potent antispasmodic. It is used as antispasmodic. Antispasmodic मतलब वही ना कि आपका अगर स्मूथ मसल जो है आपका GIT का, मान लीजिए आपके पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होता है, वो मोरडा ये नहीं जला मतलब मराठी मध्ये, तो मोरडा म्हणजे काय? स्पाझम. इट इज अ स्पाझम ऑफ स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन. So oxyphenonium is used as antispasmodic.
and has a ratio, it is a high ratio again ganglionic blocking to the muscarinic activity. So it is again a ganglionic block. One is a pyranzapine. Pyranzapine, it is a tricyclic compound, selectively blocks the M1 receptor and blocks the gastric acid secretion, used to control the hyperacidity in duodenal ulcer again. So अल्सर में कौन कौन है, प्रोपेंथेलिन यूज़ करते हैं, पायरेनजेपिन यूज़ करते हैं, याद रखो. नाउ डाइसाइक्लोमाइन, नाउ दिस इज़ अ वेरी मच फेमस ड्रग, इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट. इसके टैबलेट्स भी आते हैं, आपने खाया भी होगा इसका टैबलेट डाइसाइक्लोमाइन. बहुत स्वीट वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं है, कड़वा ही होता है. इट इज़ अ टर्शरी अमाइन एंड हैज़ अ डायरेक्ट smooth muscle relaxing property. So smooth muscle relaxant, so it is a antispasmodic, okay? And it is a famous, it is a very much famous in the treatment of dysmenorrhea and it is a antispasmodic. आपके अगर पेट में मुरड़ा आ गया, आपके पेट में दर्द हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, तो आपको ये टैबलेट देते हैं डाइसाइक्लोमाइन. इसका नाम है साइक्लोपाम. साइक्लोपाम और साइक्लोपाम और मेप्टालस्पास. मेप्टालपास नाम का एक टैबलेट आता है, साइक्लोपाम नाम का टैबलेट आता है इंडोको रेमेडीज का, कि उसमें ये डाइसाइक्लोमाइन होता है. ठीक है, एंटीस्पाज्मोडिक. सो यूज्ड इन द डिस्मेनोरिया एंड एंटीस्पाज्मोडिक. डज नॉट हैव साइड इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन. एट्रोपिन के जो साइड इफेक्ट है ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड ऑल दैट, ये इसको नहीं है. ठीक, विल सी द नेक्स्ट वन, फ्लैवोक्सेट. सो इट इज अगेन अ टर्शियरी अमाइन एंड इट इज ऑल्सो लोकल एनेस्थेटिक, एनाल्जेसिक एंड स्लाइट एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी. तो इसको क्या है, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी है, लोकल एनेस्थेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, पेन भी कम करेगा, एनेस्थेशिया भी करेगा, और एंटीकोलिनर्जिक क्या है, थोड़ा बहुत. सो स्लाइट एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी. इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलैक्सेशन एक्शन ऑन द वॉल ऑफ स्मूथ मसल. देन इट इज़ यूज टू ट्रीट द एनीयूरिया. एनीयूरिया, इट इज़ यूज टू ट्रीट द एनीयूरिया. एनीयूरिया मतलब आपको अगर यूरिन नहीं हो रहा है तो, सो दैट इज नोन एज एनीयूरिया. एब्सेंस ऑफ यूरिन, दैट इज अ एनीयूरिया. सो इट इज़ यूज टू ट्रीट अनयूरिया और एनीयूरिया. देन नॉक्टरल एन्यूरेसिस. It is used to treat anuria, nocturnal anuresis, मतलब bed wetting. Then suprapubic man, in the suprapubic man, मतलब जिसका जो pubis है वो ज़्यादा एक्टिव है. Then urinary urgency, जिसको मतलब यूरिन नहीं पास कर सकता वो. So it is used to treat the anuria and nocturnal anuresis, suprapubic man, then urinary urgency, and it is related with the frequency of urine. And to control the frequency of urination related with cystitis. Okay, next one is oxybutynin. Again it is an anti-muscarinic. It has also direct antispasmodic and some local anesthetic effect to the urinary bladder. It is used in the treatment of urinary urgency, urge of incontinence, वही सब सेम चीज़ है. urinary frequency, increased urinary frequency, and also used in the spina bifida. And nocturnal enuresis. Then next one is a tolteridine and pesoteridine. Tolteridine and pesoteridine. So out of that, pesoteridine is a prodrug of tolteridine. Tolteridine and pesoteridine. Pesoteridine is a prodrug of tolteridine. These are again a tertiary amine, acts on a specific M3 receptor agonist, act as a M3 receptor antagonist, and has used in treatment of bladder detrusor instability, in the treatment of urinary incontinence. Also it is converted to active metabolite, which has the same action. मतलब ये tolteridine जो है active metabolite में कन्वर्ट होता है, that is a pesoteridine. Now drug therapy of overactive bladder. Overactive bladder मतलब क्या, आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, सो दैट इज़ नोन एज अ overactive bladder. हाँ, अगर आप 5-6 बार दिन में यूरिन के लिए जाते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग. बट आप 20 बार 15 बार जा रहे हो यूरिन को, सो दैट इज़ अ abnormal condition. So drug therapy of overactive bladder, that is known as a overactive bladder. So if the frequency of urination is increased, that is known as a overactive bladder. Now there are new drugs like solifenacin and dariphenacin. Solifenacin, dariphenacin, they are the newer drug, and they are claimed to have they are claimed to be specific for bladder specific, and they are anti-muscarinic in action, and they are used in the treatment of overactive bladder. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. सोलेफिनेसिन इज अ एंटी मस्कर्निक ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवरएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम. याद रखो, सोलेफिनेसिन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंड ऑक्सीब्यूटिनिन इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग फ्रॉम दिस क्लास. जो है ओवरएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम के लिए ड्रग, सोलेफिनेसिन इज अ लॉन्गर एक्टिंग. इसके भी टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है. ये बहुत ही फेमस ड्रग है सोलेफिनेसिन फॉर ओवरएक्टिव
bladder. Then oxybutynin is the shortest acting from this class. Then newer drug mirabegron, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है. mirabegron is a newer drug approved for overactive bladder and it acts by stimulating the beta 3 receptor. So mirabegron जो है it is not a anti muscarinic drug. ये याद रखो, सोलिफिनेसिन जो है एंटी मस्कार्निक ड्रग है. mirabegron जो है इट इज़ अ बीटा 3 एगोनिस्ट, बीटा रिसेप्टर 3 एगोनिस्ट. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा. mirabegron अगर यहाँ पे मैंने बोला है, लेकिन mirabegron इज नॉट अ एंटी मस्कार्निक. सोलिफिनेसिन ऑब्वियसली इट इज एंटी मस्कार्निक एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओवरएक्टिव ब्लैडर, बट mirabegron इज also used in the overactive bladder syndrome, but it is not a anti-muscarinic. It is a sympatho. There is a selective agonist for beta 3 receptor. Now, drug used to reduce the unwanted spasm or spasticity. New chapter start, that is nothing but the skeletal muscle relaxant. So, drug used to reduce the unwanted spasm or spasticity without interfering the consciousness or normal voluntary movement of the muscle. They are known as skeletal muscle relaxants. Okay. सो देखो, आपका जो स्केलेटल मसल है उसमें अगर स्पास्टिसिटी आ गया, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो दैट इज़ नथिंग बट द स्पास्टिसिटी. जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर सेरेब्रल अटैक्सिया. सो इन दोज पेशेंट्स दे हैव लॉट ऑफ स्पास्टिसिटी इन द मसल. उनका मसल स्पास्टिक बन जाता है, स्टैटिक स्पास्टिसिटी होता है उसको. तो वो रिलैक्सेशन के लिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं. जैसे आपने अगर कुछ अनयूजुअल पोजीशन पे आप सो गए, मान लीजिए कि आप टेढ़े मेढ़े सो गए, तो आपका मॉर्निंग में क्या होता है, पूरा पेट दर्द होता है, आपको पूरा पेट दर्द अकड़ जाता है. ठीक है, अकड़ जाता है मतलब क्या, स्पास्टिसिटी आ जाता है, स्पाज्म आ जाता है आपके स्केलेटल मसल में. सो इन दैट केस यू हैव टू यूज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स. ओके, नाउ spasticity is due to increase in the skeletal muscle tone associated with the decrease in the skeletal muscle power due to damage to the corticomotor neuronic pathways in cerebral palsy, multiple sclerosis, CNS injury, stroke मतलब ये आपका blood clotting हो गया ब्रेन में. On the other hand, spasm is involuntary contraction of muscle or group of muscle usually accompanied by pain and limited function. तो स्पाज्म और स्पास्टिसिटी में थोड़ा डिफरेंस है. तो स्पाज्म क्या है कि अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एसोसिएटेड विद द पेन एंड लिमिटेड फंक्शन. बट स्पास्टिसिटी मतलब क्या, पास्टिसिटी मतलब क्या. ओके, सो स्पास्टिसिटी मतलब इंक्रीज इन द टोन ऑफ स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन द स्केलेटल मसल पावर ड्यू टू डैमेज टू द कॉर्टिको न्यूरोनिक पाथवेज इन द सेरेब्रल पाल्सी. सेरेब्रल पाल्सी में होता है ये, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सीनेस, अगर ब्रेन को कोई इंजरी हो गया तो उसमें भी स्पास्टिसिटी आ जाता है. स्ट्रोक में भी आ जाता है, अटैक्सिया में भी आ जाता है. ऑन द अदर हैंड स्पाज्म इज इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें. नाउ दीज ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज ड्रग एक्टिंग सेंट्रली, सेंट्रल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ड्रग एक्टिंग सेंट्रली और सेंट्रल स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. बैक्लोपेन, बेंजोडाइजेपिन्स एंड tizanidine. Okay, baclofen, benzodiazepine and tizanidine, these are the centrally acting skeletal muscle relaxant. क्लासिफिकेशन याद रखो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. ड्रग एक्टिंग पेरिफेरली. सो पेरिफेरली न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, आपने क्लासिफिकेशन देखा है ऑलरेडी. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक्स दे आर पेरिफेरली एक्टिंग skeletal muscle. ड्रग एक्टिंग डायरेक्टली ऑन द skeletal muscle. So this is a dantrolene. Dantrolene is a steroidal drug. It is a steroidal drug. So it will act on डायरेक्टली ऑन स्मूथ मसल. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी. DI ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में आ चुके हैं, आपके GPAT में भी आ चुके हैं सब. नेक्स्ट वन इज अ ड्रग इफेक्टिव इन द पार्किंसनिज्म. सो अगेन यू कैन सी द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. सो दे आर क्लासिफाइड एज सेंट्रली एक्टिंग एंड पेरिफेरली एक्टिंग. सो फर्स्ट वन इज सेंट्रली एक्टिंग. सेंट्रली एक्टिंग कौन है? सेंट्रली एक्टिंग आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज मेफेनेसिन एनालॉग्स और कंजेनर. मेफेनेसिन के जैसे दूसरे कौन है? ये कैरिसोप्रोडोल, देन क्लोरोजोक्साजोन, देन क्लोरमेनाजोन एंड मिथोकार्बामोल. दीज आर द मेफेनेसिन कंजेनर. कैरिसोप्रोडोल, देन क्लोरोजोक्साजोन, देन क्लोरमेजाजोन, देन मिथोकार्बामोल, देन बेंजोडाइजेपिन लाइक डाइजेपम. गामा एनोबिट्रिक एसिड माइमेटिक. तो गाबा माइमेटिक एक्शन दिखाने वाले कौन है?
तो बैक्लोपेन, सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ बैक्लोपेन. सो इट इज़ अ गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट, गाबा माइमेटिक. ओके, देन थायोकोल्चिकोसाइड, ये दोनों भी ड्रग आप मार्केट में अवेलेबल है, बैक्लोपेन, थायोकोल्चिकोसाइड. ओके, देन सेंट्रल अल्फाडो एगोनिस्ट टिजानिडीन, ये भी अवेलेबल है, सेंट्रल अल्फाडो एगोनिस्ट टिजानिडीन. So they are the known as central skeletal muscle relaxant. Now peripherally acting skeletal muscle relaxants. So उसमें आता है आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट. ओके, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट. डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट मतलब वो डायरेक्टली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है जो मसल है उसके ऊपर एक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल डेंड्रोलिन, सोडियम एंड क्विनिन, सो दे आर द डायरेक्टली एक्टिंग. एंड दूसरा क्या है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, उसमें भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में भी 2 टाइप आता है, नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स. सो उसमें अगेन लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग. सो लॉन्ग एक्टिंग कौन है, डी ट्यूबरक्यूरालिन, पेंकोरिनियम, डेक्साक्यूरोनियम, देन पाइपेक्यूरोनियम, डी ट्यूबरक्यूरालिन, पेनक्यूरोनियम, डेक्साक्यूरोनियम, पाइपेक्यूरोनियम. इंटरमीडिएट एक्टिंग कौन है, वेक्यूरिनियम, एट्राक्यूरियम, सिस्ट्राक्यूरियम, देन रोक्यूरोनियम एंड रोपाक्यूरोनियम. दीज आर द इंटरमीडिएट एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग में क्या है, मीवा क्यूरोनियम. क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा आया था कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डीपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट. तो नॉन कॉम्पिटिटिव कौन सा है, नॉन डीपोलराइजिंग कौन सा है, नॉन डीपोलराइजिंग इज नथिंग बट द कॉम्पिटिटिव एंड डीपोलराइजिंग इज नथिंग बट द नॉन कॉम्पिटिटिव. तो डीपोलराइजिंग वाले कौन है, यहाँ पे डीपोलराइजिंग वाले देखो, सक्सिनिल कोलिन. सक्सिनिल कोलिन इज आल्सो नोन एज सक्सेमेथोनियम एंड डेकामेथोनियम, सक्सिनिल कोलिन एंड डेकामेथोनियम. तो ये सक्सिनिल कोलिन का एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है, उसको मैं बताऊँ आपको. तो आपने एक मूवी देखा होगा फैंटम, सैफ अली खान का एक मूवी है फैंटम, ठीक है. वो फैंटम में सैफ अली खान जाके वहाँ पे जो डेविड हेडली होता है तो उसको मारने के लिए जेल में जाता है. तो उसको किस तरीके से मारता है कि उसका जो शावर होता है, वो शावर नहाने का जेल में, तो वो शावर में क्या करता है, वो सक्सिनिल कोलिन डाल देता है. और जब वो सक्सिनिल कोलिन वाला वाटर उसके बॉडी पे गिरता है, तो सक्सिनिल कोलिन जो है वो बहुत ही लिपिड सोल्यूबल होता है एंड इट इज़ नोन एज अ कॉन्टैक्ट पॉइजन, ठीक है. तो सक्सिनिल कोलिन जैसे ही उसके शरीर पे करता है वो वहीं पे ही पैरालाइज हो जाता है. सो सक्सिनिल कोलिन इज अ वेरी मतलब डीपोलराइजिंग टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. ये पैरालाइज कर देगा पूरे मसल को, आप कुछ मसल का कुछ कर नहीं कर सकते. दिस इज द क्लासिफिकेशन फॉर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर मैकेनिज्म ऑलरेडी आ चुके हैं. सो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग कौन से, देखो डायजेपाम, इट इज़ अ सेडेटिव हिप्नोटिक, आपने देखा है सेडेटिव हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, देन एनेस्थेटिक, ठीक है. बट इन एडिशन टू दैट इट हैज़ अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी. सो it is used in the combination with the other drug to relieve spasticity, especially with the patient operating on spinal cord, जिसका spinal cord का ऑपरेशन हो चुका है उसमें अगर spasticity आ गया तो डायजेपाम यूज़ करें. cerebral palsy, multiple sclerosis, ओके, यूजफुल इन द स्टिफ मैन सिंड्रोम. स्टिफ मैन सिंड्रोम मतलब पूरे उसके मसल स्टिफ हो चुके हैं. ड्रग ऑफ चॉइस इन द कंट्रोलिंग द स्पाजम एसोसिएटेड विद द टिटेनस टॉक्सिन. अगर टिटेनस टॉक्सिन की वजह से आपको स्पाजम आ रहा है तो डायजेपाम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. याद रखो, ड्रग ऑफ चॉइस इन कंट्रोलिंग द स्पाजम कॉज्ड बाय टिटेनस टॉक्सिन. देन आपका नेक्स्ट आता है टिजानिडीन. इट इज सेंट्रल अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक एगोनिस्ट. ये सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट है. इट एक्ट्स एज अ स्पाज्मोलाइटिक. नाउ बैक्लोपेन. बैक्लोपेन इज नथिंग बट द बीटा 4 क्लोरोफिनिल गैमा अमीनो बिट्रिक एसिड. सो इट इज़ अ गाबा एनालॉग, ठीक है. ये क्या है, बीटा 4 क्लोरोफिनिल गामा अमीनो बिट्रिक एसिड. तो ये याद रखो, बैक्लोपेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है ऑलरेडी. सो बीटा 4 क्लोरोफिनिल gamma aminobutyric acid and it is a agonist to GABA. GABA is a inhibitory neurotransmitter in the brain. It is a potent neuronal depressant mainly act by presynaptic mechanism on the spinal cord. It is a backup drug for treatment of trigeminal neuralgia. ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया मतलब क्या, जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है आपका उसका इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तो उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया. तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है बॉडी में,
कहाँ पे भी आपको चोट नहीं लगी, कहाँ पे भी आपको दर्द नहीं है, लेकिन पूरे बॉडी में दर्द होता है आपकी, इतना तेज़ पेन होता है कि यू कैन नॉट टॉलरेट दैट पेन. सो इंटेंस पेन विल बी देयर इन द बॉडी विदाउट एनी डैमेज. और कुछ भी नहीं, आपको किसी ने मारा नहीं है, आप कहाँ पे गिरे नहीं हो, आपका हड्डी नहीं टूटा है, या फिर कहीं पे जख्म नहीं हुआ है आपको, फिर भी आपको पेन हो रहा है. सो दैट इज़ नथिंग बट द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. तो ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है आपका, उसमें इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तो दैट इज़ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया. उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है आपका, उसका ड्रग ऑफ चॉइस है आपका कार्बामेजेपिन. ठीक है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामेजेपिन, याद रखो. ठीक है, सो बैक्लोपेन इज अ रिजर्व ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और इट इज़ अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. बहुत सारे इसमें उसका यूज़ है. अदर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स लाइक क्लोरोजोक्सिजोन, देन मिथोकार्बामोल और फेनाड्रिन एंड कैरीप्रोप्राडोल. These are also other centrally acting, not much important. Now next one is a physiology of muscle contraction. Physiology of muscle contraction. Okay, so we will see, I think we will see this chapter again in the upcoming. तो अभी मुझे भी बोर हो गया. स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है वो, इसकी फिजियोलॉजी. ओके, सो इफ देर इज़ अ नर्व इम्पल्स, जैसे नर्व इम्पल्स आ गया, आपका ब्रेन ने इम्पल्स दे दिया कि इस मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वंस एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड द मोटर एंड प्लेट विल स्प्रेड लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट लॉन्ग द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर. जैसे ये मोटर एंड प्लेट, ये आपका न्यूरॉन हो गया, ये यहाँ से न्यूरॉन आ गया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. सो मोटर एंड प्लेट ये हो गया साइनेप्टिक टर्मिनल. यहाँ से एसिटिलकोलिन का रिलीज़ हो जाएगा, और एसिटिलकोलिन का रिलीज़ होने के बाद, जैसे एसिटिलकोलिन का रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ पे मस्कर्निक रिसेप्टर आएंगे, यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर आएंगे, NM निकोटिनिक रिसेप्टर. ओके, तो वहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर आएंगे. जैसे एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ, निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर एक्शन होगा उसका, और वो वहाँ पे फिर बाद में आयन चैनल से बाद में उसका कॉन्सिक्वेंस. सो ACH रिलीज बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर. देन इसके बाद में ये क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल सेल का, उसमें का जो कैल्शियम है तो वो रिलीज़ हो जाएगा. तो वो जो रिलीज कैल्शियम है वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा आपके मसल के एक्टिन को, एक्टिन एंड मायोसिन. जैसे फिलामेंट्स होते हैं आपके मसल में, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट, तो एक्टिन को एक्टिवेट कर देगा एक्टिन को. तो एक्टिन मायोसिन विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो ऐसे आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली. तो कैसे, जैसे आपका स्टिमुलस आ गया आपके, तो वहाँ से एसिटिलकोलिन रिलीज हो जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट होगा. उसके बाद में क्या होगा कि जो आयन चैनल्स है तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मसल सेल का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, स्टोरेज फॉर्म होता है. वो रिलीज कैल्शियम विल इंटरेक्ट विद द एक्टिन, एक्टिन विल कंबाइन विद द मायोसिन टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. दैट्स वाई न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दे आर यूज्ड एज अ स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्यों है. सो वंस an action potential is generated at the motor end plate, it will spread like a electric current along with the sarcolemma of muscle fiber. The action potential will also spread into T tubules exciting the terminal cisternae of sarcoplasmic reticulum. This causes calcium. Okay, this will cause calcium gets into the sarcoplasmic reticulum to open, allowing calcium to deposit. मतलब sarcoplasmic reticulum से calcium बाहर आ जाएगा. Calcium will bind to troponin on the thin myofilament, causes the changes in the shape. This pulls the myoglobin away from the side. This मतलब ये बाद में एक बार कैल्शियम रिलीज हो गया तो कैल्शियम विल एक्ट विद द एक्टिन, interact with the actin, and then actin will combine with the myosin and muscle will contract. So this is how muscle is contracted. In the spasticity there is excessive contraction. Okay, so you have to relieve that contraction by using various drugs. Now पेरीफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन आपने देखा है ऑलरेडी. नर्व एक्शन पोटेंशियल, रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन इन द लार्ज अमाउंट फ्रॉम प्री साइनेप्टिक वेसिकल इनटू मोटर नर्व. ओके, इन absence of nerve impulse, small amount of ACH is always there to maintain the miniature end प्लेट पोटेंशियल. ये मी ऐसा नहीं है
कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी रेस्टिंग में है, तो आपके मसल में ये नहीं है। तो आपके मसल में एक टोन रहता है, बेसिक टोन, वो टोन उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम अगर हो गया तो फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो देर इज सर्टन टोन विच इज नोन एज अ मिनीचर एंड प्लेट पोटेंशियल. Okay. Now acetylcholine is released. Now acetylcholine is released into synaptic cleft that will bind to nicotinic receptor of the motor end plate. कि acetylcholine release होगा that will bind to nicotinic receptor at the motor end plate and leading to development of plate potential. Effect end plate potential. Depolarization is the due to influx of sodium into motor plate. Then when end plate potential is achieved surrounding the membrane fiber gets excited, which result into development of muscle action potential, which initiate the muscle contraction as a result of release of calcium from sarcoplasm. तो मतलब क्या है कि नॉर्मली ACH मसल में होता है फॉर द मिनीचर एंड प्लेट पोटेंशियल, लेकिन जब आपको स्टिमुलस आता है तो एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, वो निकोटिनिक रिसेप्टर के जाकर ऊपर एक्ट होता है. ओके, विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल. Depolarization is due to the entry of sodium inside the motor end plate. This end plate potential is achieved surrounding membrane of muscle, and then muscle fiber get activated. And once it is activated, it will release the calcium from sarcoplasmic reticulum. Calcium will interact with the actin and myosin filament, and it will contract the muscle. Now this is the physiology. Now what are the different ways to block the contraction of muscle? So either you can block the impulse, or you can block the impulse. Local anesthetic drug and certain biological toxins, they can block the impulse. Then acetylcholine is inhibition by हेमोकोलिनियम जो है वो ACH का सिंथेसिस ब्लॉक कर देगा. और या अनदर वे इज टू ब्लॉक द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन. सो एसिटिलकोलिन रिलीज इनहिबिटर बोटुलियम टॉक्सिन. ठीक है, बोटुलियम टॉक्सिन, उसको भी बोटुलियम टॉक्सिन का भी यूज़ करते हैं. ये तो इसका इंजेक्शन तो बहुत महंगा होता है, 1 लाख रुपीज़ का एक का 2 ml का इंजेक्शन है बोटुलियम टॉक्सिन, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन. ठीक है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर सेरेब्रल एट्रोफी वगैरह, इसमें. ओके, मोटर एंड प्लेट मॉडिफिकेशन इंटरफेरेंस. ओके, विद द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेंट्रोलिन. क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ये आपने ऑलरेडी देखा है एक दो बार. कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ एसिटिलकोलिन एट मोटर एंड प्लेट, डी ट्यूबरक्यूलिन, एट्राक्यूरियम, देन वैक्यूरियम एंड गेलामाइन. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ एसिटिलकोलिन एट मोटर एंड प्लेट कौन है? क्यूरारे अल्कोलाइड्स. ओके, याद रखो. क्यूरोनियम जहाँ पे आएगा, क्यूरोनियम मतलब क्यूरारे आएगा. persistent depolarizer at the end plate of muscle fiber. सक्सिनिल कोलिन, ये क्या करता है? परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन करता है, कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन करता है और मसल को पैरालाइज कर देता है. सक्सिनिल कोलिन. एसिटिलकोलिन रिलीज इनहिबिटर एट द नर्व टर्मिनल. तो बोटुलियम टॉक्सिन क्या करेगा? एसिटिलकोलिन का रिलीज नहीं होने देगा. डायरेक्टली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कौन है? डेंट्रोलिन. सो दिस वाज रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर ड्रग एक्टिंग ऑन ANS. जो ड्रग एक्टिंग ऑन ANS है सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोलाइटिक एंड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट. ये सब